good evening. You're on the big story here with us. I'm Seher Zama, and we're making a start here in the focus with respect to the farmers' protests. As protests continue at various Delhi borders here by the farmers, but they've also been holding a string of meetings, marathon meetings, so to say, with respect to their next decision on whether or not to meet with the central government here on yet another invitation for talks. Protesting farmers here have said that the government, though, should tell them the date of the meeting, after which they can take a final call on this. But on the other end, the Agriculture Minister, Mr. Narendra Singh Tomar, has also spoken just a short while back, saying it is for the farmers to decide the date and time. He has further urged the farmers here to once again go through the laws and suggested amendments. मैं पूरी तरह आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। And here's what's happening in the state of Kerala regarding the farm laws here. The Kerala governor denied permission to convene a special state assembly session here because this was being called in by the government to have the central government repeal the farm laws and to have the state government, in fact, not to follow these farm laws. So the left parties here bases the decision taken by the state governor of Kerala. The left parties have intensified their protest once again now against these three farm laws. Chief Minister in his letter to the governor, in fact, had called the decision to deny the special session as unconstitutional. The Chief Minister further added that the governor does not have the power to reject the recommendation of a majority government. This is going to be yet another face-off between the Chief Minister and the State Governor there in Kerala. We have with us our correspondent Vivek getting us those inputs here. Vivek, effectively the Chief Minister here trying to say that once a majority government decides that they have to convene a special session, irrespective of the reason for a special state assembly session, it is not within the rights of the State Governor to deny that. That is what the ruling dispensation, the left government and the Chief Minister has clearly said that constitutionally speaking, the governor does not have any right to basically dismiss or reject the permission of the government to convene a session or an assembly. The government says that on there are various provisions that is meant exclusively for the governor for which he can take a decision. Now he can take a decision if there is no absolute majority for the government. But in this case, you have a government with an absolute majority. So hence, why is it that the governor has taken this decision of rejecting the proposal to convene an assembly? Now the governor has given out a reply to Chief Minister on this, saying that he has actually criticized the government on various measures that's been taken, especially on the farming sector and on various other sectors, and asking the government what is the urgency to convene a session, especially at this point of time when you have a budget session that is all set to begin on the 8th of January. So these kind of questions, these kind of a complete face-off between the government and the governor has now taken up. Remember, the similar situation had occurred earlier during the anti-NRC CAA protest where the governor had intervened in the rights of the government. Now, so this has completely become a political face-off, mainly because the Congress and the CPM has alleged that the governor is acting as per the behest of the central government. They're saying that the governor is an RSS agent. He's acting as per the orders of Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi. Yesterday, there was a protest that has been held by the Youth Congress where they raised slogans against the governor.
march towards Raj Bhavan. So basically, the situation in Kerala, especially after the local body polls, the situation is becoming more and more volatile, where the governor himself has been pushed into a controversy now, and it's to be seen how things pan out. All right. Well, Vivek, many thanks for getting us those developments here that are coming in from the state of Kerala in what the Kerala government now chooses to do about these farm laws. But keeping in mind the ongoing meet that is on between the farmers' unions, the protesting farmers' unions here, on yet another invitation that's coming from the central government. Let's get in more voices on that front here as well. We have Abhimanyu Kohar of the Rashtriya Kisan Mahasangh. Abhimanyu ji, shukriya aapka hamare sath baat karne ka. Right now, the question here is about the date and time of the meeting. क्या ये delaying tactics है? Because agriculture minister ने बहुत साफ तरीके से कह दिया है कि सरकार बातचीत करना चाहती है, मगर जो farmers को convenient है, वो अपना date और time decide करें बातचीत के लिए. देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अभी थोड़ी देर में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो इसमें हमारे सभी सीनियर लीडर्स किसान संगठनों का फैसला है वो सुना देंगे। और जहां तक बात रही सरकार की तरफ से मिली हमें चिट्ठी की, तो देखिए उसमें एक बात समझने की है, जिस भाषा का उसमें इस्तेमाल किया गया है वो भाषा किसी लोकतांत्रिक सरकार की नहीं होती है। उसमें ये कहा गया है कि भाई आप लोग अपनी आपस में बातचीत करके आप बता दीजिए कि कब आप बात करना चाहते हैं। इसका मतलब तो एक यही अर्थ हुआ ना कि भाई सरकार उस चीज को लेकर संजीदा नहीं है। जो आंदोलन चल रहा है, जिन मांगों पे चल रहा है, उन मांगों को पूरा करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। तो सरकार तय करेगी सरकार किस तरीके से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहती है। हमारी तरफ से हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे। हमारी तरफ से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन सरकार उसमें गंभीर तो हो। सरकार देखिए, उस चिट्ठी में सरकार ने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि भाई इतने इश्यूज पे हम संशोधन करने को तैयार हैं, बाकी कुछ और इश्यूज हो तो वो बता दीजिए। तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लगा के तो कोई बातचीत नहीं होती ना। नहीं, बट अभिमन्यु जी, अगर सरकार इस दूर तक पहुंच गई है कि अमेंडमेंट्स होंगे, आप अमेंडमेंट्स पे एक नजर डाल दीजिए, बातचीत उस पे भी तो होना चाहिए। बट एज यू सेड, देयर इज गोइंग टू बी अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. Abhimanyu ji, I appreciate you speaking with us. The farmers press conference now has just started. That's the latest coming in from there. Let's take a listen. हनन मौला जी, योगेंद्र जी, युद्धवीर जी, शिव कुमार शर्मा कक्का जी, हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाला जी, रामपाल जाट जी राजस्थान से, गुरनाम सिंह चंदूनी जी हरियाणा से, और बलदेव सिंह सिरसा जी हमारे जो कमेटी मेंबर हैं। तो आज वैरायटी हम आपके सामने लाए हैं एक किसान मोर्चा की। सो ये वैरायटी से हम शुरू करेंगे। योगेंद्र यादव जी से एक एक साथी बोलते जाएंगे। मैं अपनी जगह लेता हूँ अब। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों, पंजाब के संगठन भी, बाकी देश के तमाम संगठनों की भी लंबी बैठक के बाद वो फैसला हुआ जिसका आपको इंतजार था। फैसला ये हुआ कि केंद्र सरकार की तरफ से 20 तारीख को जो चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी का जवाब हम आपके सामने यहाँ पढ़ के सुना रहे हैं। मैं जस्ट पढ़ दूंगा, बाकी साथी उसके बारे में आपको विस्तार से बता सकेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से विवेक अग्रवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सीईओ, पीएम किसान, कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी हमें आई थी, उन्हीं को हम जवाब दे रहे हैं। सब्जेक्ट: संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। ये सब्जेक्ट है महोदय। यह आपके 20 दिसंबर 2020 के उस पत्र के जवाब में है जो क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के श्री दर्शन पाल जी को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे 39 अन्य साथियों को भी कॉपी किया गया है। ये चिट्ठी उन्होंने भेजी थी। पॉइंट 1, हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा है
कि हमारा पिछला पत्र केवल एक व्यक्ति का मत है या कि सभी संगठनों का यही विचार है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर दर्शन पाल जी के नाम से भेजा गया पिछला पत्र और यह संयुक्त पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बनी राय है। इसके बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। पॉइंट 2, हमें बहुत दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य कई प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीके से बदनाम करने का प्रयास है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायिकतावादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका और तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश करती रही है। सच यह है कि किसानों ने साफगोई से बात की है, लेकिन सरकार की तरफ से इस वार्ता में तिकड़म और चालाकी का सहारा लिया गया है। इसके अलावा सरकार तथाकथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है, जिनका इस चल रहे इस आंदोलन से कोई संबंध ही नहीं है। आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वो भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह ना होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। सरकार का यह रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। पॉइंट 3 बस थोड़ा सा ही और है। हम हैरान हैं कि सरकार अब भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रही है, क्योंकि चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आप कह क्या रहे हो हमें पता नहीं लग रहा। किसानों के प्रतिनिधियों ने 3 केंद्रीय कृषि अधिनियमों की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्यों और संवैधानिकता के संबंध में बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पलट के पेश करना चाहा है। हमारी कई दौर की वार्ता के दौरान सरकार को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसे संशोधन हमें स्वीकार नहीं है। 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव को खारिज करने के बाद हमें बताया गया था कि सरकार के साथ ऊपर चर्चा के बाद ठोस प्रस्तावों को हमारे साथ साझा किया जाएगा। हमें आज तक इस तरह के कोई नए ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। आप जानते हैं कि आपने 9 दिसंबर 2020 को जो लिखित प्रस्ताव भेजे थे वो 5 दिसंबर की वार्ता में दिए गए उन्हीं मौखिक प्रस्तावों का दोहराव भर हैं जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि आपके प्रस्ताव में अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून का जिक्र तक भी नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इन तीनों कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ये तो 3 उसके बारे में है। इन तीनों कानूनों के अलावा आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है उसमें ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप वर्तमान, ये सरकार की भाषा है, वर्तमान खरीद प्रणाली से संबंधित लिखित आश्वासन का प्रस्ताव रख रहे हैं, जबकि किसान संगठन राष्ट्रीय किसान Well, this is a farmers' press conference, a crucial one. We're going to be back in just a bit here, but more importantly, they have made it very clear that the government is not listening. The proposal that they sent for talks on the 20th of December is exactly the same of what they had sent on the 9th of December. So nothing has changed as far as the understanding and the status of this on the government is concerned. Stay with us. We're back in just a bit. सरकार इस आग से खेल रही है, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता
उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएँ आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर एक महीने से उनको नज़रअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान यहाँ पे आए हैं इनको सहसम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करे। यही मेरा कहना है। नमस्कार, शिव कुमार कक्का जी, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, 5वें राउंड में जब आखिरी बात हमारी कृषि मंत्री जी के साथ हुई थी तो उन्होंने लंच के बाद पहले बड़ा आग्रह किया था कि ठीक है, आप 3 कानूनों को रद्द करना चाहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आपको उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। अच्छा, फिर से रिपीट करूं क्या? देखिए, जब 5वें राउंड कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा हो रही थी, लंच के बाद वो ये जानना चाहते थे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है आपको। हम केवल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं। तो हम लोगों ने बड़े मन के साथ, मैं कहा कि ना, हमको जब ये कानून चाहिए नहीं तो क्यों बताएं प्रॉब्लम पर। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि ठीक है, प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे कानून में एक बात पूरी रूप से है कि ये कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर में प्रवेश कराने का एक षड्यंत्र है। तो कुछ चर्चाएं हुई कुछ बिंदुओं पर। ठीक आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ तब ये चर्चाएं, उन्होंने कहा कि आपको कहां कहां प्रॉब्लम है। तो उनसे 2 टूक कहा हम लोगों ने कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों कानून है, एक किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने, सब 13 लोग की कमेटी की गई थी, उन्होंने साफ कहा। उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए, हम कुछ प्रपोजल भेजते हैं, अब आपको प्रपोजल भेजना है तो स्वागत है, भेजिए, मगर हमको तो एक काले कानून तीनों को कैंसिल करना है। उनका प्रपोजल आया। इसी के आसपास की 4-5 राउंड में क्या बातचीत हुई, क्या क्या संशोधन चाहते हैं। हम संशोधन जब चाहते ही नहीं है। ये सबसे पहले अमेरिका में, यूएस में कानून लागू हुआ, अब वहां केवल एग्रीकल्चर 2% रह गई है। उसकी स्टडी करें, वहां का किसान भी सुसाइड कर रहा है। वहां 5616 स्कूल बंद हो गए, गांव उजड़ गए, गांव के गांव शहरों में आ गए, बेरोजगार लोग हो गए, जमीनें वहां की अधिकांश नीलाम हो गई। केवल बड़े किसान बचे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर हो गए। तो ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है। इसलिए हमको ये 3 कानून नहीं चाहिए। आप इन्हें निरस्त कर दें और सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद छोड़े। अन्नदाता सबको ऊपर कड़कती ठंड में पड़ा हुआ है, ये हमारी मांग है। एमएसपी पर कोई चर्चा 5-6 राउंड में हो नहीं पाई है। एमएसपी एक बड़ा विषय है, समर्थन मूल्य भी, उस पर भी चर्चा होना है। तो सरकार से ये अनुरोध है, पत्र जा रहा है कि बड़े मन के साथ वो किसानों को बुलाएं और एमएसपी सहित 3 कानूनों को तत्काल निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। तो सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना। और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी, डायलॉग से निश्चित तौर से समाधान निकलेगा। धन्यवाद। Well, this is a press conference which is still going on. The farmers still haven't given their final decision. They're still reiterating on what they feel about the government's proposal, that the government is not listening to them on repealing the farm laws, and the government has also not taken into account their concerns. This is to continue. Stay with us. We'll be back in just a bit. For now, it's a wrap on the show here.